عرفان رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، آج ہے 22 اپریل. آج سے 10 سال قبل ایک عہد ساز شخصیت، جن کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم، ایسی ہی ایک عہد ساز شخصیت جن کے بارے میں یہ کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی ہماری زبان کو سمجھنے والے لوگ موجود ہیں، وہاں پر ان کو جانا مانا جاتا ہے، ان سے محبت کی جاتی ہے، ان کے مداح وہاں موجود ہیں. میں ذکر کر رہی ہوں فلم ایکٹر، پروڈیوسر، ڈائریکٹر، کمیڈین، رائٹر، ایک ایسی شخصیت جو جب بھی اسکرین پر آئے انہوں نے لوگوں کے غموں کو چرایا اور صرف ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیری. بس یہی کام انہوں نے ساری زندگی کیا، اور شاید آج جب ہم ان کا ذکر بلند کریں گے تو وہ دوسرے جہاں بیٹھے ہوئے بھی یہی خواہش کریں گے کہ ہم آج بھی ان کو مسکرا کر یاد کریں. ہمارے بہت ہی پیارے مرحوم معین اختر صاحب کی آج برسی ہے. 10 برس بیت گئے انہیں ہم سے بچھڑے ہوئے، لیکن ان کی یادیں، ان کا کام اور جس طرح سے انہوں نے لوگوں کو انٹرٹین کیا ہے وہ آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں. اور آج عرفان رمضان ٹرانسمیشن میں ہم ان کی ان تمام خدمات پر ان کو سلام بھی پیش کرتے ہیں اور ان کو یاد بھی کر رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے، سلام پیش کرتے ہیں. پاکستان کا نام روشن کرنے والا ایک ایسا چہرہ کس نے جہاں گیا پاکستانیت لے کے گیا، حب الوطنی لے کے گیا، ادب لے کے گیا، علم لے کے گیا، عرفان لے کے گیا، اور تمیز کے دائرے میں جسے ہم مسخرہ پن کہتے ہیں اس سے آگے نکل کر ادب و تعظیم اور سب سے بڑھ کے یہ کہ ایک دوسرے کو عزت دے کے مسکراہٹیں بکھیری ہیں. آج ایسی ہی شخصیت کو یاد کرتے ہوئے ہمارے درمیان کچھ ایسی ہی شخصیات جو شبیہات بھی ہیں ان کو ہم نے یہاں مدعو کیا ہے. بڑا اعزاز ہے، ان کا اپنا کارنامہ بہت زیادہ ہے. میں چاہوں گا کہ آپ جو پروگرام دیکھتے رہتے ہیں آج انہی سے پوچھتے ہیں کہ کیا کرے گا قاضی. السلام علیکم فیصل قاضی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ ان کے بہت قریب رہے اور وہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے. الحمدللہ. میرے والد کی تدفین سے 2 گھنٹے پہلے تشریف لائے تھے، 2003 تھا. تو ظاہر ہے جب باپ جاتا ہے تو پھر انسان زیادہ ٹوٹتا ہے. میرے باپ ظاہر ہے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا، لیکن بہرحال سوچنا چاہیے، جانا سب کو ہے. تو میں بہت ڈسٹرب تھا، بہت زیادہ، اور میں اپنے آپے میں نہیں تھا. تو آئے تھے مرحوم اور مجھے ایک جملہ کہا تھا کہ اب مت کہنا کہ ابو نہیں رہے، میں کھڑا ہوں. بس وہ پھر انہوں نے ثابت بھی کیا زندگی میں بھی، اور آپ سب نے جو دیکھا وہ بھی سچ تھا، اور جو میں نے دیکھا وہ بھی سچ تھا. اور میں ان کو تادم مرگ میں دعائیں دیتا رہوں گا. مجھ پہ ان کے بڑے احسانات جو میں بتا کے ان کا اجر عظیم کم نہیں کرنا چاہتا. بڑے احسانات. بڑے نفیس آدمی رہے، یعنی ظاہراً زندگی میں تمسخر، ہنسی مذاق، مگر اپنی زندگی میں سنجیدگی بھی، اصول پرستی بھی اور حق پرستی بھی رہی. عابد علی امنگ صاحب تشریف فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. آپ کی ملاقات رہی ہے معین اختر صاحب سے؟ بہت کم، پسند لیکن یہ کرتے کہ تھے؟ بہرحال بہت مختصر ملاقات رہی، لیکن احساس ہوا کہ اگر آپ تہذیب کا استعارہ کسی کو کہہ سکتے ہیں، ان کی گفتگو سے تہذیب جھلکتی تھی. صحیح، بالکل ایسا ہی. وہ معین اختر صاحب کے سوا کوئی اور نہیں. آج چونکہ انداز بیاں کا سیگمنٹ ہے، آج انداز بیاں کا سیگمنٹ بھی ہم معین اختر صاحب آپ کے نام کرتے ہیں، آپ کو یاد کرتے ہوئے، کیونکہ آپ کا انداز بیاں آج تک ہم بھولے نہیں ہیں. آغاز کرتے ہیں منفرد انداز بیاں. اور انداز بیاں جو سیگمنٹ ہے یہ اسپانسرڈ بائی حبیب آئل ملز، اور بہت بہت شکریہ چیز ڈپارٹمنٹل اسٹور کا جنہوں نے آج گفٹس بھیجے ہیں ہمارے پارٹیسپینٹس کے لیے. اور آج کا موضوع جو ہے وہ بھی میں آپ سب کو بتاتی چلوں. آج کا موضوع ہے بھوک تہذیب کے سانچے میں ڈھل نہیں سکتی. اور جو ہمارے آج کے پارٹیسپینٹ ہیں، پہلے پارٹیسپینٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں جن کا تعلق ہے GCU لاہور سے. احتشام الحق، بھوک تہذیب کے سانچے میں ڈھل نہیں سکتی. جی اجازت. جب شکستہ مکانوں کے آنگن میں مفلسی بین کرنے لگے تو مکینوں کی شریانوں میں لہو نہیں سرکشی دوڑا کرتی ہے صدر عالی وقار. وہ سرکشی جو بھوک کی کوکھ سے جنم لے کر تہذیب کا چہرہ نوچتی ہے اور رقص شعلہ فشاں پر اصرار کرتی ہے. بھوک چاہے 2 وقت کی روٹی کی ہو یا پھر تخت و تاج کی، یا پھر ہوس زدہ ہونٹوں سے ٹپکتی جنسی رال کی،
भूख हमेशा तहजीब के कपड़े उतारकर इंसानियत को बरहना रक्स करवाती है। सो तारीख की बूढ़ी आंखें गवाह हैं कि जब फ्रांसीसी बासियों की अंतड़ियों को भूख की दीमक चाटने लगी तो वारसाई के महल से लेकर बिस्तील के किले तक दरख्त सूलियां बन गए। जब तंजानिया में रोटी नापैद हुई तो माची माची के मतवालों ने जर्मन जर्नैलों की खोपड़ियों के मीनार तामीर किए। और आज भी शहर कायद की ठिठुरती शामों में हम कचरा कुंडी से रोटी के नवाले चुनते हैं तो महल्लात के उस पार खड़े नंबरदार हमारी मुफलिसी पर कह कह लगाते हैं, अन करीब इन जुल्म के ऐवानों को मौत है। सदर आली वकार, जब शिकम में रोटी नहीं इक्तदार की भूख हो तो तब भी तहजीब के बखिए उधड़ते हैं। सो कभी अफ्रीका के नखलिस्तानों में ग्रेजीनी के हुक्म पर 8,000 कत्ल हुए तो कभी सानह 11 मई की सूरत कराची की सड़कों पर तबले जंग बज गया। और जब शिकम की यही आग जिनसी हवस में बदल जाए तो 4 साला हरीम से लेकर 80 साला शरीफा बीबी तक रिदाएं तार तार होती हैं। और डॉन की शह सुर्खियां 6 माह में 1500 मासूम कलियों के मसले जाने का नोहा लिखती हैं। और तो और सदर अली वकार, टोक्यो के एक तहखाने में जंको फ्रूटा 44 दिन तक 4 दरिंदों की हवस का निशाना बनकर अपना वजूद हार जाती है कि जब्र से नस्ल बढ़े, जुल्म से तन मेल करे, ये अमल हम में है, बेइल्म परिंदों में नहीं। हम जो इंसानों की तहजीब लिए फिरते हैं, हम सा वहशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं। हम सा वहशी कोई जंगल के दरिंदों में नहीं। वाह क्या खूब। बहुत अच्छा। क्या सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, सैफ अंदाज़े बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं। वाह वाह। जी, और मैंने हमारे देखा साथ फैसल गाजी साहब के हाथ उठ गए थे, जुम्बिश होने वाली थी, मगर उन्होंने कहा करना ही नहीं करना है, ताली बजानी नहीं बजानी है, सोच में पड़े। ताली दरअसल एक तो एक बन गया एक इशारा, लेकिन दिल जब दिल अप्रिशिएट कर बैठे ना तो फिर वो दिल को लगती है तो दिल से अप्रिसिएशन निकलती है, दिल से जो बात अच्छा। निकलती है असर रखती है। बेशक, माशाल्लाह। और जो हमारे साथ आज दूसरी पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज से इनका ताल्लुक़ है, मैमुना मलिक। अस्सलाम वालेकुम। भूख तहजीब के सांचे में ढल नहीं सकती। सदर अली वकार, मैं शहर कायद के अक्सर मज़ाफ़ात में ऐसे आसूदे हाल किस्मत के मारे तिफले नादारों को, गुर्बत के मारे मुरझाए हुए गुलों को, कचरे के ढेर में बैठकर अपनी ज़िंदगी की उम्मीद आस लिए, जीने की तमन्ना लिए, परस्तिशे नफ्स के लिए रोटी के निवाले को तलाश करते हुए देखती हूँ तो ये हकीकत एतराफ़ करना पड़ता है, भूख तहजीब के सांचे में ढल नहीं सकती। सदर अली वकार, जब कोरंगी का रिहायशी हबीबुर रहमान अपने बच्चों की भूख और प्यास से मजबूर होकर, छीना झपटी की लत पर मजबूर होकर राहजन बन जाए, जब शहर लाहौर का एक शख्स भूख के सितम से लाचार होकर अपने 4 बच्चों को मौत की नींद सुलाकर खुद को फंदा लगाकर खुदसोजी कर लेता है तो कहना पड़ेगा भूख तहजीब के सांचे में ढल नहीं सकती। सदर अली वकार, राशन की तकसीम के दौरान इंसानों के पांव तले कुचले जाएं, मुफ्त सेरी अफ्तार के लिए सरेरा इंसानी खुददारी की तहकीर होती हो, साहिब मालो जायदाद के दरो दहलीज में नफ्स इंसानी की तस्लील होती हो, एक पैकेट खैरात के बदले कई तस्वीरों की तशहीर होती हो। बकौले शायर, खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन तो बट रहा था वो फोटो से डर गया। सदर अली वकार, जहां अमीर शहर के घोड़े मुरब्बे, उनके कुत्ते दुबई के फास्ट फूड खाएं, उनकी औलादें ऑक्सफोर्ड से तालीम हासिल करें, उनकी जायदादें दियार गैर में, उनके महलात स्विट्जरलैंड में, उनका इलाज लंदन में, उनके कारोबार दुबई में, जहां नशा हुक्मरानी का खुमार उतारा जाता है, जहां के खजाने अपने प्रोटोकॉल पर लुटाए जाते हैं, जहां उनके गुण गाए जाते हैं, जहां उनके नारे लगाए जाते हैं, उस वतन और उसके बासियों के लिए झूठे वादे और लॉलीपॉप के सिवा कुछ नहीं, IMF की गुलामी, नाइंसाफी, बदउनवानी के सिवा कुछ
नहीं, जहां हर शोबे जिंदगी, हर इदारे उनकी दस्तरस से बाहर, जहां बिजली गैस पानी नापैद, जहां महंगाई के सिवा कुछ नहीं, जहां मुफलिसी 2% को पहुंची हो, वहां तरक्की और खुशहाली का ख्याल एक ख्याल लगता है, वहां एक महजिब तहजीब का तसव्वुर भी एक ख्याल लगता है, क्योंकि भूख तहजीब के सांचे में ढल नहीं सकती। भूख तहजीब के सांचे में ढल नहीं सकती। इससे पहले भी इसी तकरीर को या इन तकारीर को हम सुनते रहे कि भूख तहजीब के आदाब भुला देती है, मगर भूख में और रोज़े में फ़र्क है। यह इबादत है और वो मुफलिसी वाली भूख है। कहते हैं कि दोनों ही सुलगते हैं मगर फ़र्क के तपिश है, हासिद की जलन और है, आशिक का धुआं और। एक मुख्तसर तवफ़्फ़ा, लौट कर आएंगे। इरफ़ान रमज़ान में आपका इंतज़ार रहेगा। इरफान रमज़ान में आपका खैर मकदम है। आज 22 अप्रैल है। हम शिद्दत से याद कर रहे हैं मुईन अख्तर साहब को, जो अच्छों में बहुत अच्छे थे, और उनका ये कॉम्प्लीमेंट भी आज हमें याद करवाया गया फैसल काजी साहब के लिए कि तुम बुरों में बेहतर बुरे हो। फैसल काजी साहब, आपको जब ये जुमला कहा, आपने इससे नसीहत ली या गुस्सा किया? नहीं, गुस्से का तो सवाल ही नहीं बनता। मैं तो आज समझ में आ रही है कि 26 साल पहले ठीक फरमाया था, बुरों में बेहतर बुरा हो। बुरों में बेहतर बुरे हैं। इससे बेहतर कॉम्प्लीमेंट मुझे नहीं मिल सकता, मुझे नहीं दिया किसी ने। अमेरिका के गवर्नर्स ने मुल्क के नामों समेत मुझे भी एजाज़ी शहरियतें दी, लेकिन इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट किसी ने नहीं किया और ज़िंदगी में मिलेगा भी नहीं। हाँ, शायद वो आपसे मोहब्बत इतनी करते थे। बेशक बहुत। और उनको फन का पता था, उनको काम का पता था कि बेहतर काम कैसा होता है और बेहतरीन कैसा होता है, कि बेहतरीन तो वो खुद करते थे। सही, बेशक। ये अंदाज़े बयां जारी हो सारी करें। बिल्कुल, और उनकी याद का सिलसिला भी जारी रहेगा। अंदाज़े बयां 2 पार्टिसिपेंट आगे अपना जो है तकरीर कर चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ तीसरे पार्टिसिपेंट मौजूद हैं। इनका ताल्लुक़ है आसा जलाल स्कूल से, अलीना शाहिद, और आपका मौजू है भूख तहजीब के सांचे में ढल नहीं सकती। अलीना शाहिद, बिस्मिल्लाह। इजाज़त है। ये एक तारीख सुनसान रात के बाद होने वाले क़यामत ख़ेज़ सुबह का मंज़र है सदर आली वक़ार, और न जाने ऐसी कई हकीकी दास्तानों पर रोज़ाना चश्मे फलक रोती है कि सितम ज़रीफ़ हालात और पंजाब का नदीम, भूख, अफलास, अबतर माशी हालात, घर के नाम पर फ़कत एक कमरा और एटम बम की तरह गिरता 17,000 का बिजली का बिल, हौसला शिकन और अहले खाना के सामने बेबसी की तस्वीर, रास्ता फ़कत एक, चुनता है तो कुफ्र का हकदार, छोड़ता है तो जिल्लत का प्रचार, कि सदर आली वक़ार करीब है कि मुफलिसी उसे कुफ्र तक ले जाए, और फिर इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन के 2 मासूम नौनिहाल अहलिया और नदीम इस दुनिया की जिल्लत को छोड़कर कब्र के सुकून को अपना मस्कन बना लेते हैं। लेकिन सदर आली वक़ार, सवाल यह है कि इन सब का जवाब दे कौन? जनाबे वाला खूबसूरत आंखों में चमकता अज़्म और अपना बचपन बेचता, तख्ती किताबों के साथ गुजारने वाला वक्त, कलम की स्याही से अपने हाथ नीले करने वाला वक्त, आयल की कालक में शब रोज़ अपना बचपन बिताने वाला छोटू, कि बताओ अहले दानिश, वो तख्ती ले या रोटी ले? उसके हंसी दिनों का जवाब दे कौन? करीब है कि इस मुफलिसी में वो अपनी हिस्से लताफत खो दे, क्योंकि भूख तहजीब के सांचे में ढल नहीं सकती। जनाबे वाला, सफाक हकाइक और तल्ख मनाजिर बता रहे हैं कि कौन नाशिक खुदा की ज़ात का है, सारा चक्कर माशियात का है, कि कुछ दिनों तो फरते हैरत से ये रहता है खामोश, देखता है हुक्मरानों को नशे की धुत में बेहोश, मजहब फरोश, दी फरोश, भूख से मरते हुए सफ़ेद पोश, आखिर आ जाता है उसकी रूह सरताबी को जोश। जनाबे वाला, भूख की तड़प जब अपने फन फैलाती है तो एक समाज का सताया हुआ, नसीब का पछताया हुआ नौजवान मांगा उसने कल भी था, मांग वो आज भी रहा है, कल उसका हक था, आज उसका जब्र है, कल वो एक तालिब इल्म था, आज वो एक दहशतगर्द है, कल उसके सीने में इल्म था और आज आपके गिरबान पर उसके बाजू हैं, कल वो एक तालिब इल्म था और आज वो एक दहशतगर्द है, कल भूख उसकी दुश्मन थी और आज अकेला वो सारे समाज का दुश्मन है, कल समाज
उसको उसका हक देने से कासिर था और आज अकेला वो समाज को उसका हक देने से कासिर है, क्योंकि भूख तहजीब के सांचे में ढल नहीं। वाह शानदार। जी, भूख तहजीब के सांचे में ढल नहीं सकती। और हमारे अगले जो पार्टिसिपेंट हैं वो हैं बहरिया यूनिवर्सिटी से, उनका ताल्लुक़ है जवाद आसिफ। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह। भूख इंसान के अमल की आईनेदार होती है सदर आली वक़ार। जैसी भूख वैसा अमल। वाह, भूख हर असबियत और अकीदत से पाक होती है। भूख गद्दारों को जन्म देती है सदर आली वक़ार। अल्लाह। तहजीब माशरे के वो रस्म रिवाज, अकायद और दस्तूर हैं जिनके खौल में इंसान को कैद कर दिया जाता है। सदर आली वक़ार, पेट की भूख इन तहजीब की रोटियों से मिटाना नामुमकिन है। हमारी तहजीब ये कहती है कम उम्र बच्चे का मजदूरी करना जायज़ नहीं। मुझे बताइए सदर जी वक़ार, तहजीब का ये सांचा मैं कराची की सड़कों पर अपनी माँ के हाथों बने खाने बेचते 13 साला अब्दुल वारिस को कैसे समझाऊं, जो अपने 4 छोटे बहन भाइयों का वाहिद कफील है। हमारी तहजीब ये कहती है खुददार बनो। मुझे बताइए जी वक़ार, तहजीब का ये सबक मैं उस बाप को कैसे पढ़ाऊं जो उसके भूख से बिलखते बच्चों का पेट भर नहीं सकती, और वो बाप फलाही इदारे के बाहर राशन की लाइन में लगकर अपनी सफेद पोशी का भरम तोड़ देता है और अलल ऐलान ये कहता है भूख तहजीब के सांचे में ढल नहीं सकती। सदर आली वक़ार, भूख सिर्फ पेट की नहीं होती। भूख अगर रेटिंग की हो तो तहजीब का गला घोंटकर कौमी चैनल पर नागिन डांस करने पर मजबूर कर देती है। वाह वाह। भूख अगर मुनाफे की हो तो 50 किलो खरबूजा रमजान में 200 रुपए किलो बिकता है। भूख अगर हवस की हो तो तहजीब को बेआबरू करके ज़ैनब और निशवा जैसी मासूम कलियों को मुरझा देता है। भूख अगर शोहरत की हो तो तहजीब को बालाए ताक रखकर खैरात में दी जाने वाली आटे की बोरी की कीमत सोशल मीडिया की 5 तस्वीर के इवज मुकर्रर करती है। और भूख अगर इक्तिदार की हो तो सियासी तहजीब को पामाल करके ऐवाने बाला के इंतखाब में हमारे नुमाइंदों को हॉर्स ट्रेडर्स बना देती है, क्योंकि भूख जालिम होती है, भूख काफिर होती है। वाह, वाह। बहुत खूब। भूख भूख। फैसल कारी साहब, अगर आपको कहा जाए कि बहुत सारा पैसा आपको देंगे, जो चाहेंगे वो देंगे, नागिन डांस करके दिखाएं। देखें, अब ये हर इंसान की अपनी मर्ज़ी है कि वो अपने आप को कैसे पोर्ट्रे कर रहा है, और हर इंसान की ये भी मर्ज़ी है कि वो अपनी कितनी कदर कर रहा है, सही और ये भी मर्ज़ी है कि वो अपनी कदर कितनी करवा रहा है। सही। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये जवाब रहने दें। नो कमेंट्स। जी हाँ, ज़ाहिर है, ज़बरदस्त। बेकार है, क्योंकि मैंने कह दिया हर इंसान की सही अपनी है। मर्ज़ी कि वो अपनी कदर कितनी करवा रहा है। ठीक है जी। ए अहले वफा दादे जफा क्यों नहीं देते, सोए हुए जख्मों को जगह क्यों नहीं देते। आबिद अली उमंग साहब, आज जी, नताइज रिजल्ट आपके की तरफ सामने आते होंगे। मैं ज़रा आज हौसला अफजाई के लिए इनके पास चली जाती हूँ, और जब तक आप अपना सर जो आज है- तो बहुत खतरनाक रिजल्ट। हाँ, आज मुकाबला बहुत ही खूब था, बहुत ही ज़बरदस्त था। मैंने कहा आज तुम लोग की सपोर्ट के लिए मैं भी यहाँ पर जो है वो आ जाऊँ। सो आज फैसला आपने करना है, और बताइए कि जी कौन अच्छा, चारों मैं- पार्टिसिपेंट मौजूद हैं। मैं आपको सच्चाई के साथ बताऊं, मुकाबला बहुत ज़्यादा आज हमारे लिए, मेरे लिए कम से कम जजमेंट के लिए मेरे मुश्किल हो लिए गया बहुत होगा मुश्किल आपके लिए, था। उसकी वजह यह है कि बच्चों ने पिक्चराइजेशन भी की, जो ज़रूरत है डेक्लेमेशन की उसको भी पूरा किया, फैक्ट्स भी पूरी तरह पेश किए, और करंट अफेयर्स के साथ रिलेट करके अपने मौजू के साथ इंसाफ भी किया। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। एहतशाम भाई, सिर्फ एक करेक्शन, इसके जी, मार्क्स एहतशाम। कहीं पर कमी बेशी नहीं हुई है। 11 मई नहीं है, वो 12 मई है। कराची का जो वाक़या है वो क्या बात 12 है? मई है, वो 11 मई नहीं है। तो उसको क्योंकि जब आप नेशनल मीडिया पर आते हैं तो वो और बड़े इवेंट्स जो हैं उनकी डेट्स बड़ी एक्यूरेट होनी चाहिए। बहरहाल सर, आपकी इजाज़त से मामलात कुछ यूँ बनते हैं, आपसे इजाज़त ले लूँ? करीब से देखें आप। ओहो, आज जो है वो इतना गंभीर हो गया है अरे, फैसला नहीं, मैं ये कि आपसे इनको जो मुशावरत है भी वो करूंगा, ये मदद तो लेनी मामलात पड़ वाकई गई है। गंभीर हैं।
टेंशन दिल धड़क तो रहा है बहुत ज़्यादा तेजी संगीन तेजी है, से, जरा सब मगर, अपने दिलों पे हाथ रख लो और दुआ करो, रमज़ान का महीना जाएगा। है, आखिरी फैसले मुकाबले का में मुश्किल मरहला हो है, जाएगा। आज फैसले फैसला आपको सुनाना पड़ेगा। सब अपने दिलों पे हाथ रखिए, चले जल्दी से दुआ कीजिए कि मतलब, अल्लाह ताला जो है वो कुछ और सब करना अपने पड़ेगा। लिए दुआ करें। हाँ यहाँ पे जी, मामला बड़ा संगीन है। क्या हुआ है इशू? जब इन्होंने कहा आपसे इजाजत ले लूं, मुझे लगा ये निकाह की तरफ जा रहे हैं। या अल्लाह, मेरी बाद में इन्होंने जब ये ट्रांसमिशन में दिखाया, आप सिर्फ खवातीन का ही जिक्र करते अरे हैं। हम दो में खवातीन कौन है? मैं हूँ ना एक्सक्यूज यहाँ मी, हम मौजूद। तीन में, अच्छा, मतलब हम मैं क्या तीन में, हूँ? खवातीन कौन है? क्या बात है, हम दो में कह रहे हैं, हम दो में। मैं भी हूँ ना इस आप तो ऐसा ट्रांसमिशन लग रहा है में। बच्चों को स्कूल लेकर आई हैं, वहाँ पे खड़ी हुई लग रही हैं। अच्छा, यहाँ पे दो बंदों के दरमियान मुकाबला ऐसे हो। अच्छा, टाई हो गया है। और वो एक एक क्या? बोल दिया जाएगा आपको। ओके, अच्छा, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि या तो ये मुमकिन है कि हम एक मिनट और दे दें, आहा, या ये हो जाए। या दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये है कि दो क्वालिफाई कर जाए। मेरा ख्याल है कि अगर 1 मिनट बच्चे को और दे दिया हम जाए। दो को क्वालिफाई करा देते ना, दो को खुश करते हैं। आखिरी दिन में फंस जाएंगे, टाइम उस पर कम बस होगा, 5 करते लोग हैं खड़े ना, होंगे। मेरी बात मान लेना प्लीज। दो को एक शेर भी क्वालिफाई नहीं सुन सकते। ठीक है, जैसा सही है आपको ना? दो को क्वालिफाई एक एक शेर सुनाते हैं, जल्दी से शेर सुनाते हैं जिसमें मजेदार चलो, है। शेर सुना- जवाद आसिफ, आपसे स्टार्ट देखा, करें। शेर पे हाथ मेरी रखना कोई चाहिए, बात तो नहीं मानता अरे, इस ट्रांसमिशन में, ये नोट फैसला हो शेर गया। करता है। करेंगे नहीं, सुन चले, शेर सुनाए। ऐसे कौन सुन ले। है? जवाद आसिफ, जवाब शेर जवाब सुनाइए। भाई, सेकंड में कोई शेर। एक शेर या बंद जो भी आपको पसंद है, हाँ जी, जल्दी से अपनी सुना। पसंद। ऐसे ही जल्दी। मैं हार जीत का फैसला नहीं आवाज सुना। हाँ। तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, वाह, अब ना हम पर चलेगा तुम्हारा फुसून। हाँ। चारागर दर्दमंदों के बनते हो क्यों? हाँ। तुम नहीं चारागर, हाँ। कोई माने मगर मैं नहीं मानता। मैं नहीं मैं मानता। नहीं वाह, मानता। वाह, वाह, हाँ, बागी। ये तो शौरों वाली बात आइए, की एक मिनट, आप आओ बेटा। नहीं, माइक नीचे कीजिए, अपनी अच्छा। पसंद का। जल्दी। शहर उनकी नहीं होती जो महवे ख्वाब होते हैं, ये आजादी है, आजादी के कुछ आदाब होते हैं, वही समझेंगे ये नुक्ता, निगाहें जिनकी गहरी हों, गुलामी है गुलामी, चाहे जंजीरें सुनहरी हों। वाह। गुलामी है गुलामी। गुलामी, चाहे चाहे जंजीरें जंजीरें अलैला शायर। वाह जी वाह। अलल ऐलान होते हैं यहाँ सौदे ज़मीरों के, अलल ऐलान होते हैं यहाँ सौदे ज़मीरों के, ये वो बाजार है जिसमें फरिश्ते आम बिकते हैं, यहाँ तहजीब बिकती है, यहाँ फरमान बिकते हैं, जरा तुम दाम तो बदलो, यहाँ ईमान बिकते ईमान हैं। देखते हैं। अल्लाह अकबर। सही है। जी एहतशाम। हम जूतियां जब्र के शाहकार पे दे मारेंगे, ओहो, हर बुते जुल्म को दीवार पे दे मारेंगे। ओहो, हम जमीजात जो शाहों से उलझ बैठे, आसमां खींच के दरबार पे दे मारेंगे, दे मारेंगे, दे मार 4.5। ठीक हो गया। माहौल ऐसा बन गया था। माहौल ऐसा। अच्छा, आपने देखा मुकर्रर आबिद भाई जब भी आता है डेक्लेमेशन में ऐसे ये वाला, और लगता है फायर चल रहा है, कोई स्टाइल है कि बड़ा इंटरेस्टिंग स्टाइल है। ये एक पाँव का पीछे होना, एक पाँव का सर आगे कैसा लगा? मैं एक तो पाँव का पीछे और एक का आगे होना एग्रेसिवनेस की निशानी है। एग्रेसिवनेस की निशानी। एग्रेसिव लोग हैं ये। जाहिर है, मुकर्रर एग्रेसिव ना हो तो फिर उसकी बात असर कर। अच्छा जी, फैसले का वक्त है, मुख्तसरन, अब बताइए। क्योंकि हम वक्फे की तरफ जी, चल जी, रहे जी। हैं। मैम, आपने एक मशवरा दिया था, दुआ करें वो भी रिजल्ट, और रिजल्ट। आपका जो मशवरा था वो मशवरा मेरे ख्याल में मैं अपनी टीम से इजाज़त लेकर, क्योंकि उनको बाद में इसे मैनेज करना है, मेरा ख्याल है आज 2 बच्चों ने क्वालिफाई करना है। बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारक। बेटा हमारे पास 23, ओके। 22.5 एंड 24। बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत मुकाबला था। आप चारों बहुत अच्छा बोले। आज के 2 क्वालिफाई करने वाले बच्चों में जिन्होंने दोनों ने क्वालिफाई किया है, मैं दोनों का नाम एक साथ जी। ले जी, देता जी, हूँ। एक साथ ले लीजिए। ले ले वरना दे मारेंगे सर, कहीं दे मारेंगे। एहतशामुल हक फ्रॉम गवर्नमेंट दे मारेंगे, वाह। क्या बात है जी, बहुत खूब। हाथ तो उठाओ, लोगों को पता लगे दे मारेंगे। हाँ, दूसरे एक कदम आगे बढ़ा लिया करें ताकि पता चल जाए कि हमारे आ पास जाए। है कौन। एंड सेकंड क्वालिफायर आज के, देखें वो इशारा कर रहे हैं, यू आर अब राइट, मुझे हो रहा है जवाद आसिफ आहा, फ्रॉम जी, कराची। वही बात, नागिन डांस बहुत वाले। सारी दुआएं और तालियां। और बेटा आप हाँ जी, मेरा तालियां होनी चंदा चाहिए दोनों हमारे कितनी दोनों है, आगे बहुत तो सारी बढ़ तालियां। जाइए। कोई बात। बहुत जबरदस्त। अच्छा आपने क्वालिफाई किया। लेकिन एक बात बताऊं आपको, ये दोनों बच्चियां जो हैं, ये बच्चियां आपसे शायद किसी सतह के ऊपर कोई 0.51 के मार्जिन पर पीछे हैं, वरना इन्होंने आज किसी भी सतह पर जो है वो किसी भी मौके पर
اپنی غلطی کی وجہ سے آپ آگے نہیں گئے, اپنی اچھی پرفارمنس کی وجہ سے گئے. بہت ساری بہت دعائیں آپ کے لیے, بیسٹ مبارک آف ہو لک. آپ کو, بہت بہت مبارک ہو آپ تالیاں ہو جائیں نا. کو. تالیوں کے ساتھ ساتھ وقفے پہ جا رہے ہیں, جب لوٹ کر آئیں گے تو مزید سمجھنے سیکھنے کی کوشش کریں گے. عابد علی امنگ صاحب کا بے انتہا شکر گزار ہوں میں, آپ کا بھی شکر گزار ہوں. لوٹ کر آئیے گا, عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. رحمت خدا کے بن کر ہے چھایا, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان